Okay, good morning to all of you, and this starts a new week. In fact, it is also the last week of August. So even August is going fast now. ठीक है? और इस बार के एग्जाम्स के क्या स्टेटस होगा वो भी आज शाम तक शायद पता चले, because the newly coined education ministry, Nishant Pokhriyal, है ना? He would be, it seems, on air in the webinar mode, and probably there might be some announcement, because the paper is supposed to be held in the month of September. Both NEET as well as हाँ बोलो. Good morning, sir. मॉर्निंग. एक आध 11th का भी बच्चे आ गए, मना कैसे करें. एक सेकंड. Anyway, as I was saying that he would be on air today, so like maybe there would be an announcement regarding, hopefully not, but regarding postponement and all. वैसे तो सितंबर में लाइंड अप है, JEE मेंस भी है, नीट भी है and all. So I hope they would have the courage to hold it, or else it might be again postponed. So that would be really a irritating feature for the students. पोस्टपोन होगा, वो आ रहा था न्यूज़ में. माहौल तो बन ही रहा है, माहौल तो बन ही रहा है. सुबह न्यूज़ में भी बोल रहे थे, कल डिबेट चल रही थी कि करेंगे पोस्टपोन से. वही कह रहा हूँ कि लाइक माहौल तो बन ही रहा है. इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी तो पूरा धमकी भरा हुआ एक डायलॉग भी दिया है कि मैं जनरली चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मैं जनरली चीजों को छेड़ता नहीं हूँ, और जब मैं छेड़ता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ. सब डायलॉग सब. तो उन्होंने बोला कि आप, मेरा इंटरेस्ट आया है कि नीट वगैरह ये सब जो एग्जाम्स है वो सितंबर में ना. दीज आर वेरी चैलेंजिंग टाइम्स, है ना. शिवम सेज कि इस साल के स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया. Well, actually, there is a plus side and a minus side also, because you have started preparing for maybe April or max May, और एक ना प्रिपरेशन का भी एक मोमेंटम होता है, तो कईयों का ऊपर की तरफ जाके ना फिर इंसान सैचुरेट हो जाता है, फिर वो डाउन स्लाइड हो जाता है. So I don't know whether extra time was a opportunity utilized, or it proved to be an enthusiasm dampener. Well, it will, I'm sure, will have varied responses from varied students. So that's the point. So I don't know क्या सही है और क्या गलत. Anyway, in the meanwhile, good morning messages from प्रत्यक्ष, कार्तिक, खुशी, आर्यन, एकता, रोहन, रचित, मनन से इसकी जब भी आप साइड में जाते हो तो कैमरा बहुत जूम इन जूम आउट करता है. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, आप क्या करें. ध्रुव, गुड मॉर्निंग. शिवम, सत्यम गुप्ता has asked a question also. जितना लेट होगा उनका हमारे लिए उतना ही दिक्कत है. इनऑर्गेनिक पढ़ने का बहुत टाइम मिल गया. ये सब ना जो टाइम मिल गया वाला जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी डिबेटेबल, क्योंकि टाइम मिलते ही जरूरी नहीं कि विल ऑलवेज स्पेंड इट इन अ पॉजिटिव मैनर. कई बार भी माइंड काम करने लगता है कि अरे ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, तो चलो ठीक है बाद में स्टार्ट करते हैं, काइंड ऑफ. So there are both sides of the coin. I mean, so I'm not going to that debate right now. But yes, it has been a very fluid situation for many, and I hope it turned out to be positive for most. Because I know that it will not be positive for everybody. As I said, that preparation का एक अपना mindset होता है, motivation होता है, फिर एक momentum भी होता है, और कई लोग थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो they start losing steam. But I hope that number is not the dominant number. ठीक है ना. चलो, as far as your preparation is concerned, I don't think there is much of a difference. कि तुम लोगों का तो दिसंबर में लाइंड अप है, तो देखो अगर मान लो इनका सितंबर में अगर मान लो नहीं भी होता है तो I don't think it will be postponed beyond somewhere November beginning or something like that.
क्योंकि already number of new cases or number of people getting cured in one day, they're almost touching each other. So once it exceeds, I mean, once the number of people getting recovered, I mean, that starts exceeding the number of people getting infected. So that's some kind of a reversal of the curve. We're all waiting for that. Some mathematicians have predicted that it's going to happen somewhere in September. Let's see whether it turns out that way or not, or some new kind of development happens. Because still now things have not penetrated the rural setup. अब धीरे धीरे रूरल में भी जा रहा है तो वहां पे थोड़ा फैसिलिटीज कम है. The numbers can really shoot up very fast. ठीक है ना? प्लस वहां पे अवेयरनेस भी कम है. चलो तो लाइक we were discussing about अक्षित सेज कि हमको बस इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए कि इनऑर्गेनिक ढंग से हो जाए. बट एक्स्ट्रा टाइम का क्या जरूरत है? यू ऑलरेडी हैव टाइम, तो लाइक अभी से शुरू कर दो ना. यू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ. तो इनऑर्गेनिक आई थिंक इनऑर्गेनिक कितना, आई थिंक चार या 5 चैप्टर्स है शायद. 5 चैप्टर्स है शायद. वैसे तो टोटल अगर मैं 30 में मिला लूं तो आई थिंक 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि काफी रटने वाला है. 6 या 7 6 चैप्टर्स है. यू द केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ और वो सब भी 1-2 चैप्टर्स है. बायोमोलिक्यूल्स या कौन सा एक चैप्टर है ना. और इधर हो गया तुम्हारा वो इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स है. तो अराउंड 6 चैप्टर्स का जो है बहुत ज्यादा वो है. तो आई थिंक 6 चैप्टर्स वी कैन स्पेस इट फ्रॉम नाउ. आई मीन इवन इफ यू लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, तो 15 दिन में अगर एक चैप्टर कर दो 3 महीने का काम, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, यू शुड बी वेल थ्रू इट. So like it's all depends on your planning. ठीक है ना. चलो लेट्स फाइनली स्टार्ट. ये ऑलरेडी कक्षा हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके. ठीक है ना. Okay, there are some reports which has been shared by Divyam also. I will take my time to discuss that if required. The thing is that we were discussing about polarization. तो पोलराइजेशन का उस दिन मैं यूटिलिटी बता रहा था. इस दैट जैसे हम लोग के घर में जो 3D टीवी होता है या इवन हॉल्स में भी कई बार, तो उसमें क्या होता है ना कि जो ग्लास यूज किया जाता है ना स्पेशल, उसमें एक में ऐसे पोलराइजेशन रहता है, यानी पोलरॉइड रहता है, और एक में ऐसे पोलरॉइड रहता है. और जब शूटिंग करते हैं तो वो भी 2 कैमरे से करते हैं, और दोनों को जो फिल्म बनता है तो दोनों को मर्ज करके बनता है. सो दैट एक फिल्म इस वाले आई पे एक टाइप का इमेज बनाता है, और जो उसका दूसरा फिल्म है वो इस वाले टाइप वाले आई में दूसरा इमेज बनाता है, और फिर ब्रेन उसको सुपरपोज करके देखता है. और ऑर्डिनरी लाइफ में भी हम लोग का जो 3D इफेक्ट होता है ना, ये भी सुपरपोजिशन का ही देन है. तो वो ऑलमोस्ट रेप्लिकेट हो जाता है या सिमुलेट हो जाता है, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी अ 3D इमेज. ठीक है ना. 3D इमेज ऑफ यू नो दोस 3D मूवीज जिसके होते हैं, तो वो एक डेप्थ का फीलिंग देता है. तो 3D इमेज उसी से दिखता है, या 3D मूवीज का इफेक्ट उसी से दिखता है. दैट इज बिकॉज ऑफ 2 इमेजेस बीइंग सुपरपोज्ड देयर, एंड वी आल्सो सी देम सेपरेटली बाय हैविंग पोलरॉइड्स एट डिफरेंट प्लेन्स. दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. ठीक है ना. तो आज हम लोग पोलराइजेशन के एक दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे. पोलराइजेशन के एक दूसरा एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, and that is called as Brewster's law. अच्छा भाई, तो उस दिन एक थ्रेड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुआ था which ended almost abruptly, and that was about metals. कि मेटल में क्यों नहीं लाइट अंदर जाता है, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पिवट नहीं मिल पाते. ठीक है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है. So there was some thing pointed out by Khushi in that class, and that was कि नहीं, we also know about transparent aluminum and all, but that is not actually metallic aluminum. ठीक है ना. That's some kind of a ceramic complex. In fact, ceramics is one important area. अब तो थोड़ा सा उसका importance हल्का सा कम हो गया, but ceramics was a very important area even let's say till 10 years back. उसके बाद टेक्नोलॉजीज वगैरह सब बदल गया है. अब तो सोलार का अलग अलग तरीके का नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई इन इंडिया इवन सम कॉलेजेस हैव सेरेमिक इंजीनियरिंग एज अ डिफरेंट ब्रांच. ठीक है ना. तो वो सेरेमिक एल्यूमिनियम है, दैट्स नॉट प्योर एल्यूमिनियम. सो इट हैज अदर इनऑर्गेनिक एंड अदर समटाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो.
तो ऐसे कंपाउंड्स में फिर देन इट कुड शो ट्रांसपेरेंसी, सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। सो दैट्स बट प्योर मेटल जो है जिसमें और कुछ मिक्स नहीं है, they will always be opaque, they cannot be transparent, as I said, because they cannot carry the vibrations of the light within the material itself, ठीक है ना। so that's the reason. तो हम लोग आज करेंगे पोलराइजेशन में क्या होता है। अब देखो, अगर मान लो कोई सा भी लाइट अगर हम ऐसे करते हैं U, तो लेट अस से अनपोलराइज्ड लाइट है, सो लाइक दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, जो भी है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। सो अनपोलराइज्ड लाइट. Now, when the light hits the interface surface, so let's say this is mu1 and let's say this is mu2. Unless there is TIR, as I said, unless there is TIR, TIR हो तो अलग बात है. अगर TIR नहीं हो रहा है, तो in that case क्या होगा? In that case, there will be partial refraction, which is the dominant one. यही dominant होता है. और कुछ reflection भी हो, ठीक है ना? So that's what is going to happen. तो एक पर्टिकुलर एंगल पे, that is called as Brewster's angle. ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, देखो मैं काम करता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंपोनेंट कर देता हूँ, एक अलोंग दिस, है ना, और सॉरी एक हो गया परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस सरफेस और एक अलोंग द इंटरफेस सरफेस, ठीक है ना। इन दैट केस देखो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर वाला है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप आउट ऑफ द मटेरियल, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मटेरियल के अंदर लाइट कैरी करता है that is done by the vibration of the electrons inside. As you remember last time we discussed कि मान लो अगर कोई मटेरियल है और अगर मान लो लाइट आता है तो लाइट का जो वाइब्रेशंस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके कैरी करते दूसरे एंड तक ले जाता है. That's what happens. तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो ऐसे करके इस तरीके से, तो like what will happen is that this will become a polarized wave. This will carry basically all the other components. मतलब देखो जो लाइट आ रहा है तो ये वाला कंपोनेंट भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाला नहीं. So therefore this will be now partially polarized, ठीक है ना. So this will be partially polarized. लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों 90 डिग्री होगा. So therefore this will be a polarized wave and this will be a partially polarized wave. When will that happen? Now when this is 90 degree. अब देखो अगर ये I होता है तो ये भी I होगा, ठीक है, और ये R है, तो हमें पता है कि mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2, यानी mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2. Now that's the mathematics. तो इस केस में क्या है ना कि क्योंकि आपस में 90 डिग्री है तो देखो I plus R is equal to 90 डिग्री. तो अगर I plus R 90 डिग्री को तो R क्या हो जाएगा, 90 minus I. So therefore mu1 sin I is equal to mu2 sin 90 minus I. ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि mu1 sin I is equal to, now this is cos I, mu2 cos I, यानी tan I is equal to mu2 by mu1, and that would mean when I is equal to tan inverse of mu2 by mu1. This angle is called as now IB, and that is called as Brewster's angle. Obviously, this is the name of the scientist. I don't need to say that. ठीक है ना.
This is called as Brewster's angle. IB is equal to tan inverse of mu2 by mu1. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ब्रूस्टर्स एंगल. इस एंगल पे अगर इंसिडेंट करोगे तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड वेव हो जाएगा और एक रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा. ठीक है? तो ये हो गया IB and that is called as Brewster's angle. Fine. So that's also another example of polarization. तो देखो ये सारे छोटे छोटे फेनोमेना है. इसके अलावा पोलराइजेशन स्कैटरिंग से भी होता है and other things are there, but they are no more part of the syllabus. We are not discussing that. ठीक है ना? तो IB is equal to tan inverse of mu2 by mu1. अच्छा, क्योंकि mostly mu1 is air, है ना? तो mostly mu1 is air. Mostly mu1 is equal to 1 क्योंकि air होता है. So therefore IB is equal to tan inverse. In that case तो mu1 अगर 1 हो जाए तो फिर इसको mu2 कहने का कोई सेंस नहीं बनता. We can call it as mu only. In that case it will become tan inverse of mu, where mu2 is being written as mu because mu1 is equal to 1. ठीक है ना? So that's the understanding of Brewster's law. तो polarization में दो ही चीजें हैं, एक हो गया Malus law और that we already studied, and the other is Brewster's law. Brewster's law, which is what we are studying right now. ठीक है ना? रचिता asked कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कि वो लाइट पोलराइज क्यों हुई. एक्चुअली पता क्या है ना, ये जो लाइट आया, ठीक है ना, ये जो लाइट आया ना, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो चारों तरफ है क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट. अब जब हिट किया मेटेरियल सरफेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करो इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन. अब पैरेलल टू द प्लेन में कई सारे कंपोनेंट्स आएंगे. जैसे मान लो एक काम करो, इसको इस तरह सोच लो कि ये y एक्सिस है which is perpendicular to the material और x एक्सिस वो भी पैरेलल टू द मटेरियल और z एक्सिस वो भी पैरेलल टू द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल को हमने मान लिया सपोज xz प्लेन. ठीक है ना? तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो एक y के अलोंग है और एक xz प्लेन पे. अब xz प्लेन पे देखो हर जगह हो सकता है. xz मतलब z भी होगा, कोई बीच का भी होगा, फिर x भी होगा, फिर इस तरीके से. तो लाइक है ना, इट could be imagined in the entire plane, I mean, like this. तो जो ट्रांसमिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होगा. ठीक है ना? तो हाँ, ट्रांसमिट जो होंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं हो पाएंगे. क्या होगा ना, वो जो पैरेलल वाले हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो क्या होगा ना, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वाले में चला जाएगा. ठीक है ना? So what is happening is that the reflected wave would carry the perpendicular component, and this wave will carry the rest of the components which is along the plane of the interface. अब along the plane of the interface में z भी आता है, x भी आता है और x और z के बीच में कई सारे components आते हैं. ठीक है ना? तो वो पूरा मिक्स होगा. यानी इसमें क्या होगा ना, y वाला मिसिंग होगा, बाकी होंगे. That's why I say it's a partially polar. और इसमें क्या होगा ना, सिर्फ परपेंडिकुलर प्लेन वाला ही कंपोनेंट. ठीक है ना? That's what the point is. So that was about Brewster's law. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था इस चीज को, तो therefore it is called as Brewster's law and Brewster's angle. ठीक है? Now the last phenomena that we have is the phenomena of what is called as diffraction. Diffraction क्या होता है? The bending of light, especially at corners. At corners. Now in diffraction, जैसे diffraction का एक अब ये सब एग्जांपल देखो, अभी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, but one could do like this, that let us say there is a wall.
लेट अस से देयर इज अ वॉल, ठीक है ना, एंड somebody has a torch light out here and somebody else is on this side, ठीक है ना. अब ये टॉर्च लाइट का जो लाइट है वो डायरेक्टली यहां जा नहीं सकता क्योंकि वॉल ओपेक है, ठीक है ना. अब इसका जो लाइट होगा वो इस वॉल को हिट करेंगे, ऐसे चले जाएंगे, जो भी है, लेकिन इसको तो नहीं पता चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि एज आई सेड दैट ये जो लाइट है, ये जो वॉल है ओपेक है, इसके थ्रू तो जा नहीं रहा. लेकिन अगर इस वॉल पे तुम खड़े हो तो उधर वाला बंदा कब लाइट ऑन कर रहा है ये मुझे पता चल जाएगा, जबकि कोई लाइट आ नहीं रहा है, सो कॉल्ड. कैसे? बिकॉज लाइट विल बेंड एट द कॉर्नर्स एंड विल रीच हियर आल्सो, समझो ना. सो देयर इट विल रीच हियर आल्सो. तो यानी क्या हो गया ना, फिर से वही चीज हो गया कि इट इज बिकॉज ऑफ वेव फ्रंट्स. कि अगर वेव फ्रंट यहाँ पे है तो लाइट ऐसे नहीं कि यहाँ चला जाएगा, वेव फ्रंट यहाँ पे है यानी फिर से बनेगा. यहाँ पे अगर वेव फ्रंट है तो फिर से बनेगा, यहाँ पे अगर वेव फ्रंट है तो फिर से बनेगा, यानी कि लाइट इधर भी आएंगे, इधर भी जाएंगे, इस तरह के. So this kind of phenomena is called as diffraction. तो देखो diffraction जो है लाइट कई सारे जगह दिख सकता है. मतलब बेसिकली क्या है कि even if there is an opaque object, we can still detect the presence of light. That's essentially because of diffraction. ठीक है? Diffraction is a very what you can say is very extensive phenomenon. मतलब it's there in many cases. तो हम लोगों के सिलेबस में कमी एग्जांपल्स है. हम लोगों के सिलेबस में दो ही इंस्टेंस है जिसमें डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करते हैं. वन इज डिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट. So diffraction in single slit and diffraction in circular hole. These are very small, obviously. तो सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? यानी we are talking about single slit diffraction. कैसे? As I said, let us say this is a single slit. This is a small slit and there is a source of light coming like this. ठीक है? और स्क्रीन है. तो अगर मान लो न्यूटन के हिसाब से चले तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? एक सिंगल पैच ऑफ लाइट यहाँ पे होना चाहिए एज पर द ये पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट है. तो एज पर द स्लिट थिकनेस वी शुड सी समथिंग हियर, बट ऐसे नहीं होता है. व्हाट वी सी इज अगेन अ पैटर्न एंड दैट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ व्हाट? द वेव फ्रंट. ठीक है ना. तो इसमें कैसे पैटर्न होता है ना, अगर तुम देखोगे तो वही चीज हो जाता है ऐसे करके, लेकिन कुछ फर्क भी है. यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनता है फिर ऐसे, बट कुछ फर्क क्या है कि देखो ये ना बहुत रैपिडली रिड्यूसिंग होता है. So this is how the diffraction pattern is formed. Now to analyze this in more details, what I do is that let me draw this slit a little bigger. In diffraction, what we consider is that every source, every point is a source. So every point there is a source. So therefore, there are infinite number of sources within this slit, and that is going to produce some phenomena. Now let's look at the mathematics of that. Suppose what I do is that I imagine that there are three sources: 1, 2, and 3. ठीक है ना? 1, 2, 3. So I'm imagining three sources. ठीक है? So let us take a point, suppose here, which is y. अब अगर मान लो ये थीटा है, देखो अब पता क्या होगा कि अब अगर मान लो मैं ये तीनों को कंपेयर करता हूं तो जरा सोचो, इसका पाथ थोड़ा सा छोटा होगा. मतलब अगर तुम मिडिल वाले से कंपेयर करो तो इसका पाथ थोड़ा छोटा होगा और इसका पाथ उतना ही बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना. एंड दे वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल. तो ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2.
ठीक है ना। तो d/2 एंड लेट्स टेक इट एज थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल को बड़ा करके बनाओगे तो क्या करना, d/2, तो ये क्या हो जाएगा d/2 sin थीटा। अगर ये थीटा हुआ, दिस इज थीटा, देन दीस आर आल्सो अप्रॉक्सीमेटली थीटा, ये भी थीटा थीटा का अप्रॉक्सीमेट हो। तो मैं इसको बड़ा करके देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा d/2 sin थीटा व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली d/2 tan थीटा। ठीक है ना। तो व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली d/2 into थीटा है ना। तो क्या होगा, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली d/2 into y by कैपिटल D, है ना, into y by कैपिटल D। अब जरा सोचो अच्छे से, इज दैट कि ये जितना पाथ कम है ये उतना ही पाथ ज्यादा है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक मान लो +5 फेज में होगा, एक -5 फेज में होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो मैं मिडिल से लेता हूं, तो अगर एक का पाथ x कम होता है और दूसरे का पाथ x ज्यादा होता है ना, तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक का फेज फाई ज्यादा होगा और एक का फेज फाई कम होगा, यानी एक का +5 होगा, एक का -5 होगा। तो दैट केस व्हाट ना, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझ लो। तो therefore they will cancel out where, now where this will become equal to, यानी इस बार ये मिल रहा है that this is the path difference, है ना, and they will cancel out। कहाँ पे, जहाँ पे ये condition satisfy हो रहा है, so I will write like this, that this is equal to d/2 into y by d is equal to n path difference अपन मान लो cancel out करते हैं, कैंसिल हो रहा है ना। तो कंडीशन क्या रखी है ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू yd by 2d, है ना। ठीक, तो इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यानी y इज इक्वल टू लैम्डा d by d। तो therefore इस बार क्या आ रहा है, देखो इस बार डिफ्रैक्शन में आ रहा है कि डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज कहां पे होगा, विल बी एट लैम्डा d by d। ठीक है, यानी इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेगुलर YDAC के साथ कंपेयर करता हूं, तो YDAC में ये था ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन, और अब क्या आ गया, वहीं पे डार्क फ्रिंज का लोकेशन। बस समझ में आया। अच्छा, ऐसे अगर मान लो इसको 3 में ना करके मैं 5 में करता हूं तो क्या होगा, है ना। तो अगर मैं 5 में करता हूं, यानी अगर इस स्लिट को मैं 5 सोर्स से करता हूं, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी ऐसे ही है कि इससे जितना ज्यादा उससे उतना कम, उससे उतना ज्यादा उससे उतना कम। तो बस पाथ डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। तो इस बार क्या होगा, 4 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है ना, तो यानी क्या होगा ना, d/4, ठीक है, d/4, और फिर यही वाला हो गया y by d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यानी y क्या होगा, 2 लैम्डा d by d। ठीक है, इफ आई इमेजिन इट एज 5 point sources, if I imagine it as 3 point sources, now that is the mathematics। फिर 5 की जगह 7 ले लो, है ना, फिर 9 ले लो, फिर 11 ले लो,
फिर 13 ले लो तो देखना ये कंडीशन आता जाएगा 2 लैम्डा बाई डी, फिर 3 लैम्डा बाई डी, फिर 4 लैम्डा डी बाई डी, 5 lambda d by d and so on. So therefore, this time what is happening is that the generalized expression is that nth dark now becomes where now n lambda d by d. ये देखो, ठीक है ना? Now there is a question and that is सत्यम इज सेइंग कि अगर कॉर्नर पे वेव फ्रंट बना के हम लाइट को अगर कहीं पे भेज सकते हैं तो वो तो मैं पर ऐसे हम किसी नॉर्मल जगह पर क्यों नहीं कर सकते? देखो आई डोंट नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली मीनिंग बाय कि नॉर्मल जगह पे क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आंसर इज दैट कर सकते हैं, हम करते ही हैं वेव फ्रंट के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं कि लाइट अगर इधर डायरेक्ट करो तो बस वहीं पे लाइट पहुंचे, लाइट चारों तरफ पहुंचती है। आज के थ्योरी के हिसाब से लाइट चारों तरफ पहुंचती है एंड दैट इज अ फैक्ट। तो देयरफॉर क्यों नहीं कर सकते बोल रहे हो, बट मैं तो कह रहा हूँ कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं कर सकते मतलब आर यू हैविंग सम एग्जांपल इन माइंड कि यहाँ पे ऐसे होता है वहां पे वैसे होता है? तो मे बी यू कैन कोट दैट, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज दैट हम किसी भी डायरेक्शन में क्यों नहीं कर सकते। तो आंसर इज एक्चुअली कर सकते हैं। तो देयरफॉर व्हेन यू आर सेइंग क्यों नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कोट एन एग्जांपल, तो मे बी वी कैन डिस्कस ऑन दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि हर पॉइंट सोर्स मतलब हर पॉइंट एक सोर्स है। अब इसको मैं एनालाइज इस तरह से कर रहा हूँ कि हर पॉइंट का लाइट पहुंचेगा वहां पे, तो किसी एक पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं जानना चाह रहा हूं, ठीक है? हाउएवर डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं एंड दैट इज ये इंटेंसिटी बहुत रैपिडली टेपरिंग ऑफ, नंबर 1। तो ये तो चलो डार्क की जगह हो गए। अब ये हो गया लैम्डा डी बाई डी, ये भी हो गया लैम्डा डी बाई डी, यानी ये हो गया बेसिकली फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी, और ये भी वही है लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया 2 लैम्डा डी बाई डी ये, और ये हो गया लैम्डा डी बाई डी। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इज दैट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नॉट लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो गया फिर 2 लैम्डा डी बाई डी आ गया। So therefore there are certain differences. Therefore there are certain differences. I hope this logic is clear। अभी एक बार देख लो, मैं मिटाने वाला हूँ। इस लॉजिक पे कोई क्वेश्चन है तो पहले बताओ। चलो, so like there are some differences। differences क्या हो गया? Interference मतलब YDAC बेसिकली, और diffraction। क्या डिफरेंस हो गया? The number 1 is that central bright fringe का जो width है, so W central is equal to lambda d by d। इसमें क्या है? W central is equal to lambda d by d। रेस्ट आर सेम, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया डिफरेंस। सिमिलैरिटी कैसे? W others is also equal to lambda d by d। इसके W other fringes is equal to lambda d by d। ये सिमिलैरिटी होगी। फिर एक और डिफरेंस, the central bright fringe has the intensity of fringes are approximately same। यहां पे क्या है? intensity rapidly reduces। Now you might ask the reason। The reason is that देखो, अगर तुम देखोगे तो हर पॉइंट से वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, हर पॉइंट से लाइट जा रहा है। तो जितना इफेक्टिवली मिक्सअप होके ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए वो बन नहीं पाता, क्योंकि हल्का सा फेज का एक डिफरेंस आ जाता है। एंड देयरफॉर ये जो कंबाइन करके जो इंटेंसिटी बनता है ना, जो ब्राइट वाला, वो जो है रिड्यूसिंग इंटेंसिटी का हो जाता है। एंड देयरफॉर इंटेंसिटी रैपिडली रिड्यूसेस। इनफैक्ट YDAC में तो लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर सीन, ठीक है ना? तो एक और डिफरेंस ये मैं बताता जाता हूं। लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर सीन, लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर सीन। इसमें ओनली फ्यू 3 to 10 ठीक है ना, आर सीन।
नाउ यू माइट से फिर बाकी का क्या हो रहा है ना, एक्चुअली इंटेंसिटी इतना रिड्यूस हो जाता है कि ऐसे नहीं कि फ्रिंजेस बनेंगे नहीं, बनेंगे पर दिखेंगे, दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग आर सी। यानी these are some of the similarities and differences as far as the YDAC is concerned। और डार्क और क्या बोलते हैं ब्राइट का इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी होगी। अब एक और डिफरेंस क्या है ना, ये भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, YD डार्क इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा d by d और Y ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्डा d by d। हो गया। और इसमें क्या होगा, Y डार्क इज इक्वल टू n लैम्डा d by d, है ना, और Y ब्राइट इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा d by d except central which is at y is equal to 0। तो देखो ये n माइनस हाफ है, n प्लस हाफ है, यानी फर्स्ट डार्क अगर चाहते हो तो 1 माइनस हाफ, और अगर इसका फर्स्ट ब्राइट चाहते हो तो 1 प्लस हाफ। ये थोड़ा फर्क है, ठीक है ना, देखो ये फर्क है, ये n प्लस हाफ है, ये n माइनस हाफ। तो देखो ये हो गया लैम्डा d by d। तो जो पहला ब्राइट होगा ना वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल का तो चलो 0 पे हो गया, एक्सेप्ट सेंट्रल विच इज एट y is equal to 0, दैट इज फाइन। बट इसके अलावा जो है ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट आ विच इज लैम्डा d by d प्लस लैम्डा d by 2d, तो 3/2। तो 3/2 कैसे ना, n के जगह 1 पुट करोगे तो प्लस हाफ, ठीक है ना। Accordingly we will be able to get the dark and bright fringes। So these are the Karthik has said that how did we get the nth dark expression? नहीं, nth dark expression का तो वही मैंने बताया ना कि मैंने 5 को लेके किया था अभी, है ना। तो अभी एक काम करो, तुम 7 ले लो। तो मैंने जब 3 सोर्सेस लिए थे तो फर्स्ट डार्क आ गया, तो वो आया था लैम्डा d by d पे। जब मैंने 5 सोर्सेस लिए थे तो उससे सेकेंड डार्क आ गया 2 लैम्डा d by d पे। जब मैं इसको 7 सोर्सेस ले रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है ना। तो अगर मैं इसको 7 सोर्सेस लेता हूं, तो इन दैट केस देखो ये अगर स्लिट हुआ, ये स्लिट हो गया, है ना, ये ऐसे तो 7 सोर्स मतलब 1 2, है ना, कॉर्नर पे लिया मैंने, और एक मिडिल पे, तो 3 हो गए, है ना, 4 5 6 7। If I take 7 sources, what will happen? ना देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया d by 6, ठीक है ना। और ये देखो, तो ये अगर थीटा होता है, if let's say this is theta, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, d by 6 sin थीटा, है ना। तो पाथ डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली d by 6 sin थीटा is equal to d by 6 y by capital D। वही d by 6 approximately d by 6 tan थीटा, तो वो तो हमने पहले भी कर रखा है, चलो कर ही देता, है ना, is equal to d by 6 into y by capital D। और डार्क के लिए क्या होगा, that should be equal to lambda by 2। तो for dark क्या हो जाएगा ना, d by 6 into y by t should be equal to lambda by 2। तो ये 2 से हो गया 3, तो यानी y हो जाएगा इक्वल टू 3 लैम्डा d by, ठीक है ना। तो देख रहे हो 7 सोर्सेस मानोगे तो इन दैट केस क्या आ रहा है ना, 3 लैम्डा d by d। देखो 5 सोर्स मानो तो 2 लैम्डा d by d, 7 मान लिया तो 3 लैम्डा d by d। अब इसको 9 मान लो, फिर 11 मान लो, फिर 13 मान लो, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाओ।
इन दैट केस क्या होगा, 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी। तो इस तरीके से जो जनरलाइज कर दिया मैंने n लैम्डा डी बाई डी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो तभी हमने देखा कि इस बार जो डार्क फ्रिंज का लोकेशन आ रहा है ना, दैट इज जो डार्क फ्रिंज का लोकेशन आ रहा है दैट इज द लोकेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इन YDS। वो तो मैंने डिफरेंसेस में लिख दिया था, आई होप यू हैव कॉपीड दैट डाउन, ठीक है ना। Akshita has की explain the difference between the intensities in both। देखो एक्चुअली पता क्या होता है कि YDSC में हमने क्या, क्योंकि 2 पॉइंट सोर्सेस किया, तो कहीं पे अगर देखोगे तो बड़े शार्पली इंटरफेरेंस होता है। तो 4I0 का ब्राइटनेस आ जाता है, तो जहां पे डार्क, जहां पे ब्राइट 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 होता जाता है, तो वहां पे 4I0 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 का इंटेंसिटी आता है, क्योंकि हम लोग वहां पे 2 पॉइंट सोर्स मानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेसेंट पे बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस, अब चाहे 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है, जब जब मिक्स करोगे तो देखना कंप्लीट इंटेंसिटी बन नहीं पाता। तो अच्छा, यहाँ पे तो 4I0 ही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो देखो ये और ये देखो पाथ डिफरेंस 0, इसका भी पाथ डिफरेंस 0, इसका भी पाथ डिफरेंस 0, तो देयरफॉर यहाँ पे तो अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो यहाँ तो सारा कंस्ट्रक्टिव में चला जाएगा, समझो ना, पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो सारा कंस्ट्रक्टिव में जा रहा है। लेकिन अगर तुम किसी और पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो लाइट जा रहा है ना, ये सारे अच्छे से कंस्ट्रक्टिव में नहीं हो पाता, तो देयरफॉर इंटेंसिटी मिला के वो जो 4I0 टाइप का जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे एक ब्राइट होगा, बट इट वोंट बी एज इफेक्टिव ब्राइट एज लेट्स से एज द सेंटर, तो ये प्रॉब्लम और आगे जाके और ज्यादा हो जाता है। So therefore what you will see is a reduced intensity। इसके भी मैथमेटिक्स है, वो लगभग हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट हायर फिजिक्स में इसका भी मैथमेटिक्स है कि कितना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आता है 4I0 sin थीटा बाय थीटा का स्क्वायर करके कैलकुलेशन है। तो लाइक दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट एज यू गो ऑन गोइंग अप, आई मीन, तो जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे उसके इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली sin थीटा बाय थीटा का कुछ स्क्वायर करके आता है, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। एंड there's another question from Dhruv and that is path difference। हमने तो एक की वजह से ही निकाला है ना। हाँ, तो ऐसे अगर मान लो एक की वजह से तो दूसरे की वजह से भी तो उतना ही होगा ना, क्योंकि सारे पाथ डिफरेंस एक दूसरे कंपेयर करोगे तो बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो तभी हम लोग देखो डार्क के बारे में देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे ऑपोजिट होके बैलेंस हो रहा है, और तभी हम लोग डार्क के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। So anyway, so that was about diffraction in a single slit. Diffraction in a hole is the next one, as I said. Diffraction in a hole is the next one, as I said. ये तो बस फॉर्मूला याद करना है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर मान लो एक सर्कुलर होल होता है जिसका मान लो डायमीटर है स्मॉल d, ठीक है, तो d इज वेरी स्मॉल ऑब्वियसली। तो ऐसे केस में अगर तुम एक वो बनाओगे, स्क्रीन रखोगे, तो देखना एक पैटर्न बनेगा, ठीक है ना, कैपिटल D। बस इसका तो फॉर्मूला याद करना है। ये पैटर्न कैसे बनेगा ना, ये जो स्क्रीन है अगर मैं ऐसे देखूंगा तो दैट केस ऑब्वियसली सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है ना। फिर बीच में एक डार्क बनेगा, ये डार्क, फिर एक ब्राइट बनेगा, फिर एक डार्क बनेगा, ये डार्क, ये हो गया फर्स्ट डार्क, ये हो गया सेकेंड डार्क। तो इसका देखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट डार्क is approximately found to be 1.22 lambda d by d. Lambda is of course the light that is coming away. ये हो गया lambda।
ठीक है ना। और सेकेंड का हो जाएगा इसका डबल, यानी डायमीटर ऑफ फर्स्ट डार्क इज दिस, तो डायमीटर ऑफ सेकेंड डार्क इज अप्रोक्सीमेटली 2 into 1.22 लैम्डा डी बाई, और इसमें मुश्किल से 2-3 सर्कल्स दिखते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली 2-3 सर्कल्स आर visible, rest are too dim. देखो विजिबल 2-3 का इसका मतलब कि 2-3 हो रहा है, नहीं उससे ज्यादा होगा फिर वो विजिबल नहीं होगा, लाइक ओनली 2-3 आर सर्कल्स आर रियली विजिबल, ठीक है ना, ओनली 2-3 सर्कल्स आर विजिबल, रेस्ट आर टू डिम, ठीक है। So that's more or less the idea of diffraction. देखो इस चैप्टर से अगर जेई एडवांस में देखता हूं तो 90% क्वेश्चंस आर फ्रॉम आईडीएससी, बाकी जेई मेंस में देखोगे तो बाकियों से भी आता रहता है, मतलब पोलराइजेशन। अब तो खैर टॉपिक्स कम कर दिए, बट जैसे रिजॉल्विंग पावर वगैरह इस टाइप का भी था कुछ कुछ, तो वो सब कम कर दिया, बट अभी तो इतना नहीं है। उसमें भी क्वेश्चंस आते थे मेंस में भी, बट एडवांस में तो सिर्फ आईडीएससी से ही जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वाईडीएससी या वाईडीएससी रिलेटेड, जैसे हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म किया या लॉयड्स मिरर किया एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट जनरली क्वेश्चंस आर फ्रॉम। तो दीस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू टू लिटिल बिट रोट लर्न। नाउ यू माइट से ये कहां से आया, तो ये डेरिवेशन वगैरह नहीं है, वी आर सपोज्ड टू जस्ट नो एज एन इंफॉर्मेशन की कितना होता है, ठीक है ना। ओके, दिस इज लाइक एज आई सेड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, because I said इसका derivations नहीं है। So let's move on now. That would be the end of the discussion on this chapter, ठीक है ना। Let's now move on. Move on to the topic of dual nature. टाइम तो है थोड़ा सा, dual nature। ठीक है ना। There have been some experiments in physics. There have been some experiments in physics. Shivam says, is this a bowl? No, it's not a bowl. It's a circular hole. ये एक circular hole है. This is a circular hole. Dhruv has asked another question, that is जो डार्क फ्रिंज का डायमीटर लिया था वो आगे वाले सर्कमफरेंस से लिया था या पीछे वाले? वो डार्क फ्रिंज मतलब कोई मोटा वाला नहीं होता है, वो पतला सा होता है, वो तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए बनाया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो तुम उस चलो ठीक है, देखो इसमें ये मान लो वो हो गया, मतलब जैसे इस तरीके से ले लो, है ना, ये मान लो फर्स्ट सर्कल का हो गया और ये मान लो सेकंड सर्कल का। तो अगर मान लो तुम यहाँ पे एक लाइन बना के अगर इंटेंसिटी बनाओ, इंटेंसिटी, तो कैसे बनेगा ना, ये इंटेंसिटी बनेगा इस तरीके से कि अगर मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल है, तो इंटेंसिटी का डायग्राम करीब करीब ऐसे, है ना, ब्राइट और ये डार्क, इस तरीके से, ये वो ब्राइट डार्क वाला, ये डार्क वाला, यहाँ पे ये डार्क वाला, इधर भी ऐसे ही होगा, ये ब्राइट, वेरी रैपिडली रिड्यूसिंग, लाइक अगला वाला भी ऐसे हो जाएगा, उसके बाद तो दिखता ही नहीं ये चीज। तो इट्स नॉट दैट इट वाज सम काइंड ऑफ थिक डार्क, इट्स अ थिन डार्क, तो दिखाने के लिए मैंने दिखाया, मतलब कि देखो ये वाला ब्राइट है, तो ऐसे नहीं कि इट्स सम काइंड ऑफ अ रीजन, इट्स जस्ट अ सर्कल, ठीक है ना। और डार्क का मतलब ये कि वहां पे कुछ दिखेगा नहीं, नो लाइट, सो देयर विल बी अ स्मॉल पैच इन व्हिच देयर विल बी ऑलमोस्ट नो लाइट, ठीक है ना,
तो वो चीज है, तो इंटेंसिटी ऐसे होगा, मे बी यू कैन मेक दिस बिगर। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी इज लाइक वेरी रैपिडली रिड्यूस, ठीक है ना। तो ओवरऑल एनवेलप अगर देखोगे तो ऐसे होता है डिफ्रैक्शन पे, ये ओवरऑल एनवेलप हो, ठीक है ना। चलो तो लाइक डुअल नेचर में क्या है देखो कि कई सारे जैसे जैसे एक एक एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना डिस्कवर होता गया, तो कई सारे में ऐसे हुआ कि लॉट ऑफ न्यू फैक्ट्स केम अप एंड दे स्टार्टेड कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट सेज that the energy of light is proportional to intensity. So energy of light is obviously proportional to intensity, which is I think obvious thing, क्योंकि intensity की definition ही energy per unit area per unit time, तो यानी energy is proportional to intensity, हो गया intensity of light। अब देखो एक phenomena है that is called as emission, ठीक है, emission of electrons, emission of electrons from metals obviously, तो क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो उसमें एमिशन करा सकते हैं। अब एमिशन तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया थर्मोनिक एमिशन, मींस व्हाट, इफ यू स्टार्ट हीटिंग अ मटेरियल तो उसके मटेरियल के जो एलिमेंट के जो एटम्स है वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो उससे छिटक सकते हैं। दैट्स वन, so that is called as thermionic यानी by heating। दूसरा है what is called as field emission। फील्ड emission का मतलब क्या होता है, by applying a powerful electric field। यानी अगर मान लो एक मटेरियल है और तुमने बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इन दैट केस क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर वो बाउंड होता है, तो लाइक पकड़ के भी रखता है मटेरियल, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द ह्यूजली पावरफुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दैट केस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मटेरियल से छिटक के बाहर निकल सकते। चलो ठीक है। और एक तीसरा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक। सो दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक यानी बाय लाइट, ठीक है। तो जब लाइट को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग आए। क्या है ना, मान लो कोई मेटल सरफेस है, अब हमने लाइट दिया उसके ऊपर, तो पता चला एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली फील्ड देने से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गर्म करने से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड होता है। गर्म का मतलब ये नहीं कि बस गर्म करते इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, गर्म करके टेम्परेचर बढ़ाते 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 फिर निकलना शुरू होता है। फिर इसमें ये होता है, फील्ड दे दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फील्ड दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड और स्ट्रॉन्ग करते करते एक स्टेज आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। लाइट में क्या है कि साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक टॉर्च लाइट ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं, इंटेंसिटी तो बढ़ाना है, तो मैं काम करता हूँ 2 टॉर्च लाइट ऑन कर देता हूँ, तो इंटेंसिटी अब डबल हो जाएंगे। ये उसी स्पॉट पे अब दोनों का वो लाइट आ, 2 पे नहीं निकला, कोई बात नहीं, लेट्स बी पेशेंट। यहाँ पे भी कौन सा एकदम से निकला था, तो और बढ़ाओ, तो 4, 10, 20, लेकिन कभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। कितने भी लगा दो नहीं निकला, जबकि तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो। व्हाई? बिकॉज यू आर एडिंग मोर एंड मोर लाइट ऑन द सेम स्पॉट, तो इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकला। और ये अगर कोई आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट होता तो चलो समझ में आता। ये एक्सपेरिमेंट ऑल अक्रॉस रेप्लिकेट हुआ कि अगर एक टॉर्च लाइट से इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 टॉर्च लाइट से और ज्यादा निकलेगा, 3 से और ज्यादा निकलेगा, 4 से और ज्यादा निकलेगा। लेकिन अगर एक से नहीं निकला तो तुम वहां पे 100 टॉर्च लाइट्स ऑन कर दो एक ही स्पॉट पे फोकस करके, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। नाउ दिस वाज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे भी पता क्या होता है, इन दोनों में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, थ्रेशोल्ड होता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। चलो ठीक है, तो तुमने थोड़ा सा गर्म किया, नहीं निकला, थोड़ा और गर्म किया, अभी भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ रहा है,
लेकिन थ्रेशोल्ड पार नहीं किया। तो जैसे ही गर्म करते 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 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ तक आ गया, उसके बाद और गर्म करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। सेम हैपेंड फॉर दिस आल्सो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसमें उतना जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल को निकाल पाए। और दे रहे हो, और दे रहे हो, और दे रहे हो, एक थ्रेशोल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू होता है। तो ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं है? इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, तो कभी ना कभी तो बढ़ के फिर थ्रेशोल्ड तक आना चाहिए। तो देखा कि अगर एक से निकलता है तो दो से ज्यादा निकलेगा, तीन से ज्यादा निकलेगा, 3.7। लेकिन अगर एक से नहीं निकला तो इन दैट केस तुम 100 लगा दो तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। नाउ दिस इज समहाउ इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट व्हिच सेज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, है ना? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, ये समझ में ही नहीं आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आया जब ये थॉट डेवलप हुआ कि मे बी द यूनिवर्स अराउंड अस, व्हाटएवर वी सी, आई मीन, हैज डुअल नेचर, यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और कुछ जगह पे वेव नेचर डोमिनेट करता है और कुछ जगह पे पार्टिकल नेचर डेमोन्स्ट्रेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लाइट का पार्टिकल बिहेवियर का रोल है। तो यू माइट से ये लाइट चूज करता है क्या कि मतलब मैं पार्टिकल वाला पार्ट बिहेव करूंगा अभी या मैं वेव वाला बिहेव करूंगा? इज इट लाइक दैट? द आंसर इज नॉट रियली। इट इज जस्ट दैट बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिट है, तो जो लाइट का इंटरेक्शन है वो पूरे रीजियन के लाइट के इंटरेक्शन के साथ नहीं होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट ऑफ लाइट, नाउ दैट वाज व्हाट लेटर ऑन वाज कॉल्ड एज फोटोन, तो एक पैकेट ऑफ लाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुमने उस पूरे एरिया में कितना लाइट दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो फोटोन जाके लाइट के पास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहा है, वो इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग है या नहीं है, यानी उस फोटोन के पास उतना एनर्जी है या नहीं। So the difference is that intensity means what? It's a bulk phenomena, means it's a spread out phenomena. तो spread out से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि मेरे पास, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास जो लाइट आया, तो मेरे पास लाइट कैसे आ रहा है? Through photons. Now that was the new idea, that light is now not being thought of as some kind of a bulk phenomena, but what? Individual phenomena. मतलब what? Packet of energy means photon. तो वो फोटोन के पास अगर sufficient energy है तो ही जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इट्स समथिंग लाइक दिस, दैट लेट्स से देयर इज अ रोप और उसके साथ मैंने एक बॉल को अटैच करके हुक के साथ बांध दिया। अब तुम उसको मार रहे हो, एक बार मार रहे हो, ठीक है ना? तो लेट्स से एक बार मार दिया बॉक्सिंग, तो नहीं निकला। फिर एक बार मार रहे हो, नहीं निकलेगा। फिर एक बार मार रहे हो, नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाट इन जनरल हैपेंस। लेकिन अगर मान लो उसी हुक को तुम एकदम से धड़ से ऐसे मार देते हो, तो हो सकता है कि बॉल वो छिटक के चले। यानी उस हिटिंग में दम होना चाहिए। 5 बार उसी दम से, कम दम से हिटिंग करने से नहीं निकलेगा। लेकिन एक ही बार अगर मान लो पंच ज्यादा ताकतवर होगा तो वो बॉल निकल के चला जाएगा। Now this is precisely what is happening with photon. इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब पता क्या कर रहे हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ा रहे हो। यानी ये जो हुक के साथ एक बॉल को अटैच करके तुमने हैंग कर दिया, उसको तुम एक एक सेकेंड में 2-2 पंच कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद इंटेंसिटी बढ़ाया, मींस और फोटॉन्स जा रहा है, यानी 3-3, 4-4, 5-5 पंच कर रहे हो, नहीं निकल रहा। पंच में दम होना चाहिए। तो एक पंच अगर दमदार होगा तो वो उसी एक पंच से जो है निकल के चला जाएगा, और अगर वो दमदार नहीं होगा तो पंच करते रहोगे तो वो नहीं निकलने वाला। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इवेंचुअली निकल जाता है, बट देन दैट्स नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली क्यों निकलता है? क्योंकि उसका जो थ्रेड होता है उसका डीजेनरेशन होता है। बट ऐसे कोई डीजेनरेशन काइंड ऑफ फेनोमेना इलेक्ट्रॉन में तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस बाउंड करके रखा। तो अगर मान लो एक फोटोन ने अटेम्प्ट मारा उसको निकालने का, वो नहीं कर पाया, तो इलेक्ट्रॉन वापस अपने जगह पे आ गया। सपोज वापस अपने जगह पे आ गया, तो अगर वापस अपनी जगह पे आ गया तो उतना ही स्ट्रांगली अब इलेक्ट्रॉन को फिर से उसका न्यूक्लियस होल्ड करे। उसमें कोई डीजेनरेशन जैसे कुछ नहीं होता। तो देखो अगला फोटोन जब आएगा ना तो उतना ही ताकतवर तरीके से उसको होल्ड करके रखा उसका न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा हिल जाएगा जरूर, बट फिर वापस आ जाएगा।
तो उसमें कोई डिजेनरेशन जैसा फेनोमेना नहीं होता। देखो डिजेनरेशन में क्या होता है ना, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, 10 बार में नहीं, 50 बार, 60 बार, 70वीं बार जो है बॉल गिर गया। क्यों? वो जो धागा है वो हर बार थोड़ा थोड़ा करके उसके थ्रेड्स क्रैक कर रहे हैं, तो उसका मजबूती कम होता जा रहा है। बट उस तरीके का कोई फेनोमेना यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसलिए अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया तो 10 भी नहीं निकाल पाएगा और 10,000 भी नहीं निकाल पाएगा। वो एक फोटोन के अंदर वो दम होना चाहिए कि वो उसी एक झटके में इलेक्ट्रॉन को एटम से, एटम के इन्फ्लुएंस से या एटम के बाउंडेशन से निकाल पाए। नाउ this almost contradicts with what was expected by classical theory of light. इसलिए उसके बाद now photoelectric phenomena, that is photoelectric phenomena, and there's another one called as Davison-Germer experiment. तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट है, एक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? These actually gave birth to what is called as dual nature. यानी the fact that yes, whatever we see in nature has dual this thing, representation. कैसे? कुछ पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ वेव नेचर होता है। तो डुअल नेचर मींस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो लाइट के कई ऐसे फिनोमेना जो कि वेव के बगैर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, और कई जगह ऐसे भी है जहां पे पार्टिकल के बगैर एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर मान लो तुम वेव के साथ एक्सप्लेन करोगे तो इंटेंसिटी देखो, जैसे जैसे टॉर्च लाइट के वो फोकस कर रहे हो एक ही जगह पे, तो इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो अगर उस तरीके से एनालाइज करो तो इन दैट केस तो इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी निकलना चाहिए, बट ऐसे कभी नहीं। यानी अगर एक टॉर्च से नहीं निकला तो 100 टॉर्च लगा दो तो भी नहीं निकला। दैट वाज द कंक्लूजन। ठीक है ना? एनीवे, आई मीन दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोरी। आई मीन तो इसको हम लोग अगले दिन और अच्छे से मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करेंगे। इन द मीनवाइल लेट मी टेक द अटेंडेंस। ये थोड़ा सा तभी मैं बोलता हूँ ना कि मे बी बियॉन्ड रे ऑप्टिक्स के बाद से जितने भी टॉपिक्स है ना, उसमें देखना गपशप ज्यादा होता है थ्योरी ज्यादा है। अब क्या करें, कांट हेल्प इट। एनीवे, आज आयुष्मान भी है, मेहमान बन गया भाई आयुष्मान मेहमान। हाँ, अच्छा, ठीक, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो सिलेबस ही खत्म है ना। चलो, वन मोर थिंग। मनन सेज आज थोड़ा अटेंडेंस बढ़ गया लग रहा है चलो, वट एवर द रीजन इज। ध्रुव दास की क्या है, नया चैप्टर है? हाँ, ये डुअल नेचर नया चैप्टर है।
और चैप्टर मुश्किल से 4-5 पेज का है एनसीईआरटी में ठीक है ना. So that's how it is. But anyway, what can you do? ऐसे ही है, लास्ट के चैप्टर्स ऐसे हैं, छोटे-छोटे हैं. हाँ, तो one good sign was that few more people have started analyzing and also spending some more time on that 10 minute that I said. So it's a good sign. But एक आध ड्रॉप भी कर दिए, जैसे वंशिका, you didn't send I don't know whether Vanchika is still there. Vanchika is there. So like Vanchika, you sent a planner for the week, but after that you didn't follow it up. There are 1 or 2 more, I think, who did such a thing. तो अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है. ठीक है ना. जय गोयलदास की क्या वेव ऑफ टेस्ट खत्म? हाँ, वेव ऑफ टेस्ट खत्म. So you might say suddenly start हुआ और suddenly खत्म हो गया. अब ये चैप्टर्स के साइज रिड्यूसिंग है. अब जैसे डुअल नेचर मैंने बोला एनसीईआरटी के बुक में 4-5 पेज ही है, 2 एक्सपेरिमेंट है बस, और कुछ नहीं. हाँ, तो जो मैं कह रहा था इज दैट some people have also now started taking it more seriously, that weekly planner kind of a thing. I hope others are also others also join the same thing, and that is weekly planner बनाओ और उसी को अच्छे से follow. ठीक है ना. So that you are aware of what you are doing exactly. और उससे क्या ना 11th का रिवीजन देखना एक्टिवेटेड हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो वो देखना कंटिन्यू हो जाएगा. अदरवाइज देखना विदाउट प्रेशर या विदाउट सम काइंड ऑफ मॉनिटरिंग 11th का रिवीजन हो नहीं पाता है, और उसका इफेक्ट बाद में पता चलता है. ठीक है ना. So that's why the weekly planner is important, and I hope some more people now start taking interest in that. Few more have started taking interest, so that's a good sign, but still the numbers is not great, but I hope it becomes bigger. Fine. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी डुअल नेचर वाले टॉपिक. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay, thank you and have a good day.